خدا حافظ عمران خان۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے آج نیوز کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں اے ٹی سی کی جانب سے رہائی کا پروانہ جاری ہونے کے بعد عمران اسماعیل کراچی پریس کلب پہنچے اور اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ 9 مئی کے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ حملے کس نے کیے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بالکل، خدا حافظ عمران خان پی ٹی آئی کے بانی رہنما اور سابق گورنر عمران اسماعیل بھی پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے۔ نیوز کانفرنس میں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ حملے کس نے کیے اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ ہم سب کا دل شہداء کے ساتھ ہے۔ ہم نے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا کہ جس میں ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ 9 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے جی ایچ کیو کے اوپر، کور کمانڈر کے گھر کے اوپر، اس جہاز کے اوپر جو ایم ایم عالم نے اڑایا تھا، شہداء کی نشانیوں پہ، اور جس کسی نے بھی حملہ کیا تھا۔ مناص القوم ہم سب کٹھے ہو کے اس بات پہ یک آواز ہے کہ جس کسی نے بھی حملہ کیا اس کی انکوائری ہو اور اس کو قرار واقعی سزا ملے، خواہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ جان دیتا ہے اس بات پہ کہ اس کے ملک کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کا فوج کا مورال ہائی ہوتا ہے اپنے لوگوں کو پیچھے کھڑا دیکھ کے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خداحافظ کہتا ہوں۔ تو پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پارٹی کے مرکزی رہنما علی زیدی اور خسرو بختیار رکن سندھ اسمبلی نے بھی عمران خان سے راہیں جدا کر لی۔ علی زیدی نے کہا کہ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، وہ ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ خسرو بختیار بولے، 1 سال قبل پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے کہا تھا کہ اداروں کے ساتھ محاذ رائی نقصان دہ ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے بھی پارٹی کے ساتھ سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، وہ ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ جب میں سیاست چھوڑ دوں گا تو پھر تحریک انصاف میں بھی جو میرا عہدہ ہے سندھ کی صدارت کا، کور کمیٹی کے ممبر کا یا ایم این اے کا، سب سے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ میں پاکستان کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا، میں پاکستان کے لیے کام کروں گا۔ ایک اور سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار نے بھی پاکستان تحریک انصاف سے دوری اختیار کر لی۔ اپنے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ 1 سال قبل پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے کہا تھا کہ اداروں کے ساتھ محاذ رائی نقصان دہ ہوگی۔ 1 سال قبل میں نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور صف اول کی قیادت کے سامنے فاشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا قومی اداروں کے ساتھ محاذ رائی کی یہ نیا سیاسی لاہ عمل پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ پی ٹی آئی کی رکن سندھ اسمبلی رابعہ اصفر نظامی نے بھی پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ اس کی شدید مذمت کرتی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے والوں کی لائن لگ گئی۔ سابق صوبائی وزراء کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر، رائے تیمور بھٹی اور چودھری اخلاق نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر دی۔ سابق رکن قومی اسمبلی منصب علی ڈوگر، سابق رکن پنجاب اسمبلی مامون تارڑ، میاں طارق عبداللہ اور ڈاکٹر اختر ملک بھی پارٹی کو خیر باد کہہ گئے۔ راجہ خرم نواز بھی اپنی پوری ٹیم سمیت پی ٹی آئی سے مستعفی ہو گئے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات تحریک انصاف کے گلے پڑ گئے۔ پی ٹی آئی رہنما دھڑا دھڑ پارٹی چھوڑنے لگے۔ سابق صوبائی وزراء کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر، رائے تیمور بھٹی اور چودھری اخلاق نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی۔ رہنماؤں نے پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا اگر معاملہ سیاسی جماعتوں تک رہتا تو بہتر تھا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ہم سارے دوستوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ چلیں۔ ہم اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں۔ ہم مل کے انشاءاللہ متفقہ طور پہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ ہماری سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی۔ اگر ایسے واقعات کو یہاں پر نہ روکا گیا تو یہ تو ایک سیاست میں روش بن جائے گی کہ جب کوئی آئے ریاست کے
दिफाई अदारों से टक्कर लें और अपनी रियासत को कमजोर कर दें, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैंने सियासत में से और रियासत में से हमने ये फैसला किया है कि हम रियासत के साथ खड़े होंगे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। आज हम सब मिलकर हम दोस्तों ने ये मशवरा किया है कि हम PTI से अलहदा हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम मिलकर मुशावरत करके कोई लाएमल तैयार करेंगे। साबिक रुकन कौमी असम्बली मनसब अली डोगर, साबिक रुकन पंजाब असम्बली मामून तारड़ ने भी पार्टी से राहें जुदा करने का ऐलान करते हुए 9 मई के वाक़यात में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उन वाक़यात ने हमें हरा के रख दिया है। मेरा तो लंबा चौड़ा PTI से रिश्ता नहीं है, इसलिए हम PTI छोड़ने का ऐलान भी करते हैं और इन वाक़यात की मजम्मत भी करते हैं। PTI से लाभ तलकी कर रहे हैं और 9 मई के वाक़या को कंडेम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के हल्का NA 52 से PTI के टिकट पर मुंतखब होने वाले साबिक रुकन असम्बली राजा खुर्रम नवाज ने भी तमाम ओहदों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कहा, इदारों के साथ महज आराई नहीं की जा सकती कि फिल वक्त हम सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं और जितने भी हमारे पास ओहदे हैं PTI के, हम उससे भी दस्तबरदार हो रहे हैं। साबिक वजीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक साथियों समेत पार्टी को छोड़ गए और कहा कि 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। मैं इस दिन के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। 9 मई के वाक़े ने बिल्कुल पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। जो हमारे इदारों के साथ टकराव वो पाकिस्तान के लिए ना बेहतर था, ना है, ना होगा। दुखी दिल के साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। मियां तारिक का कहना था, जिस जमात को इतना सब कुछ दिया हो उससे अलहदगी एक मुश्किल काम है। बात करेंगे इमरान खान के बयान की, तो कहते हैं कि फौज से कोई लड़ाई नहीं, ये फौज मेरी है, जल्द वक्त तब्दील होने वाला है, आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज दूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए वकला की मीटिंग बुलाई है। गिरफ्तार हुआ तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक जैसे सीनियर्स मामलात देखेंगे। जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, कुछ मजबूर और कुछ बेनकाब हुए हैं। पार्टी के लिए नौजवान बेहतरीन सरमाया है, आइंदा टिकट उनका हक है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया है, इलेक्शन के सिवा इन मसाइल का कोई हल नहीं है। चेयरमैन PTI इमरान खान की हिदायत पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। 7 मेंबरान पर मुश्तमिल टीम इंतखाबात से मुताल्लिक हुकूमत के साथ लाहे अमल तय करेगी। मुज़ाकराती टीम में शामिल तमाम 7 अफराद के नामों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, ओन अब्बासी, मुराद सईद और हमाद अजहर मुज़ाकराती टीम में शामिल होंगे। खबर यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 जबकि एक पासपोर्ट साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मनसूख हुआ है। मजीद जानते सदाम मांगट की इस रिपोर्ट में। PTI के 9 रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर, परवेज खटक, असद उमर, ओन अब्बास पप्पी का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब, जरताज गुल और आजम समाती समेत शेख रशीद का भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया। PTI रहनुमाओं के नाम पहले से नो फ्लाई जोन लिस्ट में शामिल हैं। पासपोर्ट ऑफिस ने इस हवाले से तहरीर हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। पासपोर्ट हेडक्वार्टर से पाकिस्तान और बैरून मुल्क तमाम दफातर को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना के अरकान को जारी सफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। कानून के मुताबिक सफारती पासपोर्ट ओहदे से हटने के बाद फौरी वापस करना होते हैं। मुतअद्दिद मरतबा खतूत के जरिए पासपोर्ट वापस करने का कहा। साबिक़ काबीना अरकान ने 1 साल गुजरने के बावजूद पासपोर्ट वापस जमा नहीं करवाए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की जहांगीर तरीन से राब्तों में तेजी आ गई। बैकडोर मुशावरत का अमल भी जारी है। ज़राए के मुताबिक PTI छोड़ने वालों की मतलूबा तादाद पूरी होते ही जहांगीर तरीन नई पार्टी का ऐलान करेंगे। नई पार्टी रजिस्टर करवाने के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। राना वहीद की रिपोर्ट। PTI छोड़ने वालों की तादाद में इजाफा होने लगा। जहांगीर तरीन के लाहौर में डेरे, नई सियासी जमात बनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वालों की जहांगीर तरीन से बैकडोर मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है कि PTI छोड़ने वालों की मतलूबा तादाद पूरी होते ही जहांगीर तरीन नई पार्टी बनाने का ऐलान कर देंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप ने नई पार्टी रजिस्टर्ड करवाने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है।
पी टी आई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने भी जहांगीर तरीन से राब्ता किया है। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और आइंदा के सियासी लाहे अमल पर भी मुशावरत की। ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा, वो पहले ही कह चुके हैं कि सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, फिलहाल सियासत करने का कोई इरादा नहीं। जहांगीर तरीन से राब्ता करने वालों की ज्यादा तादाद जनूबी पंजाब से है। झंग, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला और रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले सियासी खानदान भी जहांगीर तरीन से राब्ते में हैं। जराए के मुताबिक तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की तादाद में रवां हफ्ता तेजी आएगी। और सानिहा 9 मई में मुलव्वस तमाम शरपसंदों के मुकम्मल और ठोस शवाहिद के साथ तफसीलात सामने आ गई। इंटेलिजेंस इदारों और पुलिस की जानिब से एक मुफस्सल रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को मौसूल हो गई। रियासत इन अफराद के खिलाफ केसेस में खुद फरीक बनेगी। अब तक पुलिस और सिक्योरिटी इदारे 5000 से जायद शरपसंदों को पकड़ चुके हैं। इंटेलिजेंस इदारों और पुलिस ने 9 मई के वाक़यात में फौजी और सरकारी इमलाक पर हमले में मुलव्वस शरपसंदों की तहकीकात मुकम्मल कर ली। मुफस्सिल रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई। PNN ने दस्तावेजात हासिल कर ली, जिसके मुताबिक शरपसंदों के नाम, फैमिली बायोडाटा, शरपसंदों के राबतों, पार्टी से वाबस्तगी की तफसीलात, मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड नंबर्स वगैरह शामिल हैं। दस्तावेजात में शवाहिद के लिए CCTV फुटेजेस और तस्वीर भी मुंसलिक की गई हैं। 150 से जायद ऐसे शिद्दत पसंदों की फहरिस्त अलग से तैयार की गई है, जिन्होंने जलाओ घेराव में मरकजी किरदार अदा किया। हसास इदारों की जानिब से मुश्तबा अफराद की 2 अलग फहरिस्तें भी भिजवाई गई हैं। इनमें से अक्सर गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि हसास इदारों पर हमलों में मुलविस कई अफराद PTI सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। किस शरपसंद ने किस फौजी या सरकारी इमलाक पर हमला किया, सबकी शनाख्त कर ली गई। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, मियांवाली और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में मुलविस शरपसंदों के नाम रिपोर्ट में शामिल हैं। मकबूजा कश्मीर में भी हजारों मुजाहरे होते हैं, लेकिन आज तक किसी ने शहदा की यादगार नहीं जलाई। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, मुहासरा करना ही था तो भारतीय हाई कमीशन का करते। पाकिस्तान में जो कुछ किया गया इस पर भारतीय मीडिया खुशियां मना रहा है। वो लाहौर जिना हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। तो रूह भी कांप उठी है कि जो अंदर जो हाल किया है, इतनी नफरत, इतना बदला। मैं आपको बता दूं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में कितने बड़े बड़े वहाँ पे अटैक्स हिंदुस्तान की 10 लाख दहशतगर्द आर्मी रोज करती है कश्मीरी अवाम पे। मजाल है कि आज तक कभी भी ने वहाँ पे अपने जो शोहदा का जो ग्रेवयार्ड है या जो उनकी हिस्टोरिकल जगह हैं, उनको कभी भी किसी प्रोटेस्टर ने डैमेज किया हो। ये जो झूठी साजिश की गई है, ये इबरतनाक इसका एंड होगा इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। और दूसरी जानिब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर PTI रहनुमाओं के खिलाफ बैनर्स आवेजा कर दिए गए। PTI क़यादत के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स आवेजा हैं। PTI रहनुमाओं की तस्वीरों वाले बैनर्स पर नारे दर्ज किए गए। यौम मुज़म्मत गद्दार पाकिस्तान का नारा दर्ज किया गया। बैनर्स इस्लामाबाद कचहरी चौक रोड और ATC के बाहर आवेजा हैं, जबकि रावलपिंडी थाना सिविल लाइंस की हदूद कचहरी चौक में यौम गद्दार पाकिस्तान के बैनर्स आवेजा हैं। और इसके अलावा बैनर्स पर यौम मुज़म्मत गद्दार पाकिस्तान की तहरीर भी दर्ज की गई है। मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत उज़्मा के हुक्म पर काम रोक दिया है। अटॉर्नी जनरल इजलास में पेश हुए और अदालती हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। सरबराह कमीशन ने रिमार्क्स दिए, हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। समाज से काबिल नोटिस भी नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोक दी गई। आज की कार्रवाई का एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। अदालती फैसले के बाद जुडिशल कमीशन की कार्रवाई मुलतवी की गई। जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में हुआ। इस मौका पर उन्होंने रिमार्क्स दिए, हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। समाज से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया गया। सरबराह कमीशन ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, आप कल कमरा अदालत में क्यों थे? क्या आपको नोटिस जारी हुआ था या वैसे ही बैठे थे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जबानी बताया गया था कि आप अदालत में पेश हों, ताहम समाअत के बाद नोटिस जारी किया गया।
जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, ऑडियो की सदाकत जाने बगैर क्या किसी की जिंदगी तबाह कर दें? किसने ऑडियो रिकॉर्ड की वो बात की बात है। शोएब शाहीन मीडिया पर तकरीरें कर रहे हैं, यहाँ आने की जहमत तक नहीं की। हुक्मनामे में मेरे केस का तज़किरा भी किया गया, जबकि इसका मामला ही अलग था। सानिया कोयटा का जिक्र करते हुए सरबराह कमीशन जज्बाती हो गए। कहा, हमें इस तरह की दर्दनाक तहकीकात करनी पड़ती हैं और अब हमें टॉक शोज में कहा जाएगा आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की रोशनी में खुद को काम करने से रोक दिया, जबकि 5 रुकनी लार्जर बेंच ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन के मामले पर 31 मई को एक बार फिर से समाअत करेगा। कमीशन का मुस्तकबिल अब बराह रास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले से जुड़ा है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ आसिया कोसर, PNN इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त है एक ब्रेक का।